what is actually transfer pricing and who does it actually applies to? So transfer pricing is a mechanism by which the tax authorities of the world says, boss, this profit is yours. It is of this country and it should remain in this country. If a business entrepreneur comes to you and asks you that मैं अपने businesses अब multiple countries में लेके जा रहा हूँ, global expansion है, what is the first advice you are going to give to that particular entrepreneur? Check whatever transactions you are going to do with them is at arm's length or not. What really changes in transfer pricing when a scrutiny notice arrives? What really Absolutely, it's a different ball game altogether. When a scrutiny notice arrives, there is someone who is scrutinizing your TP study with a lens that ये गलत है. transfer pricing is somewhat repetitive. I would partly say yes, this conception could be correct. But I think that's a part of every learning process. Transfer pricing doesn't test memory, it tests reasoning. Absolutely. So that is what I love about transfer pricing. उसमें कुछ याद रखने का आपको जरूरी नहीं है. Logical है. Transfer pricing is very logical. अगर किसी के पास भी sharp reasoning है, sharp mind है, वो transfer pricing बहुत easily पकड़ सकता है. It is very close as anything can get into business with respect to tax laws, and that's one thing I love about transfer pricing. In the last episode, we asked who has the right to tax income, and we saw that when money crosses borders, more than one country can claim it. But here's where it gets interesting. Even when countries agree to tax, they don't agree on how much income belongs to each of them. Because businesses today don't operate in one place. They create value across multiple countries, and that's create a powerful opportunity to decide where profits actually show up. Because in global taxation, profit is not just earned, it is positioned. Companies don't just move goods or services anymore. They move risk, function, and intellectual property, and with that, they move profits. And they don't simply pay tax where they operate, they pay tax where profit is booked. And the system that decides this is transfer pricing. Hello everyone and welcome back to Tax Table with CA Nandini. Continuing the conversation, I am once again being joined by CA Naman Shimal sir. Let's begin our conversation with him. Welcome back to Tax Table sir. It's really being very pleasurable for us to have you on board again. Absolutely, sir. Likewise, Nandini. Sir, to just build the basic understanding about the transfer pricing, what is actually transfer pricing and who does it actually applies to? So let me start with building a story around a transfer pricing, and let's go through that. मान लीजिए एक घर के अंदर एक भाई बहन है, बंटी बबली, and Bunty is a very naughty kid and Bubbly is a very kind, gentle sister, and their parents were outside the home, and Bunty broke a very beautiful expensive vase. तो उसने एक वो vase तोड़ दिया and parents were not around. What do you think would be the parents' reaction when they come back home? क्या वो उसको डांटेंगे? क्या वो what's the parents' reaction? अगर it's very expensive and invaluable, so maybe डांटेंगे उसको, थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे, because he keeps doing that. He's a very naughty kid. But let's assume that Bunty goes to his sister and says कि यार you are my cute little sister and can you take the blame? तुम तो कभी गलती नहीं करती, ठीक है, तुम्हारे से पेरेंट्स कभी डांटते नहीं हैं तुमको, और कैन यू टेक दैट ब्लेम? डू यू थिंक व्हेन पेरेंट्स कम बैक एंड क्या उनकी डांट कम होगी जो बंटी को देते, या वह वही रहेगी? maybe थोड़ी कम होगी. ओके, एंड बिकॉज द सिस्टर नेवर यूज टू डू एनीथिंग रॉन्ग. This is how companies shift their profit. Okay, so there are sister concerns, ठीक है, जहाँ associate enterprises होते हैं, ठीक है, and दो बंटी है is a highly taxed country, 30%, 25%, okay, and Bubbly is a lowly taxed country, 10%, 15%, या maybe 0 for that matter, and all the bunties of the world, ठीक है, जहाँ पे वो companies है, they shift their profit like the bunty shifted the blame. ओके, और वो शिफ्ट करते हैं प्रॉफिट, क्योंकि एट द एंड तो जो पूरा ग्रुप है उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट मान लीजिए इंडिया में रहता तो 25% टैक्स, बट वो अगर प्रॉफिट दुबई में चला गया तो 9% टैक्स, ठीक है. सो दैट शिफ्टिंग इज प्रॉफिट इज what is the manipulation people do, and like parents come back in that story
एंड दे ऑलरेडी हैव दैट सीसीटीवी इंस्टॉल्ड कि यार हमें पता है किसने गड़बड़ी करी है, आप ना बोलिए, ठीक है. दैट सीसीटीवी कैमरा इज ट्रांसफर प्राइसिंग. सो ट्रांसफर प्राइसिंग is a mechanism by which the tax authorities of the world says, boss, this profit is yours, it is of this country and it should remain in this country. Do not shift it to the country where the profit, there the tax is low. And that's the mechanism which is transfer pricing in very common terms, कि आप शिफ्टिंग ना करें प्रॉफिट का फ्रॉम अ हाईली टैक्स कंट्री टू अ लोली टैक्स कंट्री. दैट्स ट्रांसफर प्राइसिंग इन नटशेल. सो ये तो नटशेल की बात हो गई, बट इफ़ अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर कम्स टू यू एंड आस्क यू दैट मैं अपने बिजनेसेस अब मल्टीपल कंट्रीज़ में लेके जा रहा हूँ, ग्लोबल एक्सपेंशन है, या फिर सिस्टर कंसर्न्स इस्टेब्लिश कर रहा हूँ इन मल्टीपल कंट्रीज़, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट एडवाइस यू आर गोइंग टू गिव टू दैट पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर? Okay, so first advice will be कि and from transfer pricing perspective that check whatever transactions you are going to do with them is at arm's length or not. मतलब आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बंटी और बबली की स्टोरी बोली थी कि अगर बंटी वो चीज़ नहीं बताता तो वो उतनी डांट खाता जितनी उसको खानी चाहिए थी जो उसके पेरेंट्स करते, ठीक है. सो एट आर्म्स लेंथ का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी और को बेचोगे, सपोज मान लीजिए अपन इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक इंडियन कंपनी है, वो आया और उसने बोला कि हम 4 देशों में हमारी एक एसोसिएट एंटरप्राइज बनाते हैं एंड वी आर सेलिंग ऑफ टेक्सटाइल, वी आर इनटू टेक्सटाइल. अब अगर वो थर्ड पार्टीज को टेक्सटाइल किस रेट में बेचता, उससे कितना प्रॉफिट कमाता, उतना ही प्रॉफिट उसको कमाना है जो वो हमारी रिलेटेड पार्टी को बेच रहा है. तभी हमारी इंडियन टैक्स अथॉरिटीज मानेगी कि उसने कोई प्रॉफिट शिफ्ट नहीं किया है. Okay, so that's the idea. That's the first advice from transfer pricing perspective I will give to that person. सर अगर इसे हम एग्जाम्पल में ब्रेक डाउन करें, सपोज एक इंडियन आईटी कंपनी है एंड दे प्रोवाइड सर्विसेज टू देयर यूएस पेरेंट, लेट्स सपोज, एंड दे अर्न मार्जिन ऑफ अबाउट 8%. How are we going to establish that 8% margin is correct? Perfect, very good. So that's the first step of transfer pricing. So step by step you need to understand the transaction flow. First, you need to characterize the transaction. Again, क्या ट्रांजेक्शन है एग्जैक्टली, क्या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, क्या वो आईटी सपोर्ट का है, क्या वो केपीओ है, क्या वो बीपीओ है, बिकॉज अंडरस्टैंड एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव अ डिफरेंट प्रॉफिट पोटेंशियल, ठीक है. अगर एक R&D रिसर्च है तो वो नॉर्मली एक हायर परसेंटेज पे होगा, एक आईटी सपोर्ट है वो एक लोअर परसेंटेज पे होगा, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है समवेयर इन द मिडिल होगा. ओके, क्योंकि हर चीज़ को अलग दाम मिलते हैं, हर चीज़ की अगेन प्रॉफिट परसेंटेज होती है. तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या कैरेक्टराइजेशन है उस सर्विसेज का जो इंडिया कंपनी यूएस कंपनी को प्रोवाइड कर रही है. उसके बाद क्या हमने समझा है कि आर्म्स लेंथ प्राइस होनी चाहिए, ठीक है. सो आइदर let's say that Indian company is providing similar services to the any other unrelated US party. मान लीजिए उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपर करूंगा आपके लिए $30 पर आवर, ठीक है. सेम $30 पर आवर अगर सिमिलर ही ट्रांजेक्शन है वो यूएस अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ, क्या वो सेम $30 पर आवर अपनी यूएस रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहा है? अगर वो सेम कर रहा है दैट इज जस्टिफाइबल, क्योंकि जो वो चीज़ अनरिलेटेड के साथ में कर रहा है वो चीज़ रिलेटेड के साथ भी कर रहा है. सो फर्स्ट वी नीड टू सी आर देयर एनी इंटरनल बेंचमार्क्स. दिस इज एन इंटरनल बेंचमार्क, क्योंकि इंडियन पार्टी वाज डूइंग अ ट्रांजैक्शन विद अदर अनरिलेटेड पार्टी. लेट्स सपोज देयर इज नो इंटरनल बेंचमार्क, तब आपको देखना पड़ेगा कि इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जनरली अनुमान कितना प्रॉफिट कमाती हैं ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए. उसके लिए इंडिया के अंदर 2-3 सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जो कि मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंडेटेड बाय ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स या गवर्नमेंट है, बट जनरली 3 सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है और वो 3 ही जनरली सारे ट्रांसफर प्राइसिंग में लोग यूज़ करते हैं. सो यू गो वन ऑफ दो सॉफ्टवेयर्स, उसमें किसी में 50,000 कंपनी का डेटाबेस है, किसी में लाख कंपनी का डेटाबेस है, और आप अपने तरह की कंपनी आइडेंटिफाई करो. सो यू विल रन अ सर्च and you will say I am a software developer company, let me identify other software developer company and what are the margins they are earning on an average, on a median, what are the margins they are earning. Suppose मैंने एक लिस्ट बनाई और उस लाख कंपनी में से 20 कंपनी मेरे जैसी हैं, मैंने उन 20 कंपनीज को अरेंज करा और मैंने देखा कि यार मिडिल परसेंटेज क्या है, ठीक है, मीडियन क्या है. अगर मेरी कंपनी उतना कमा लेती है, सपोज वो जो मीडियन है वो 7% आ रहा है, एंड योर कंपनी इज अर्निंग 8, विच इज इट केस ऑफ योर एग्जाम्पल,
you are fine because you are earning profit more than arm's length. No कोई इशू issues. नहीं है, you are paying tax to the Indian government. But let's say the median comes at 12. Okay. ओके, और लेट्स से द मिडिल पोर्शन हम लोग इंडिया में यूज करते हैं 35 परसेंटाइल टू 65 परसेंटाइल. अगर वो पोर्शन लेट्स से 12 से चालू होता है और आप 8 पे हैं, तो आप उतना नहीं कमा रहे जितना जनरली लोग कमा रहे हैं, एंड यू आर नॉट एट आर्म्स लेंथ. तो इस तरह से फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, एंड सेकंड डू द इकोनॉमिक एनालिसिस कि आप दूसरी कंपनीज आइडेंटिफाई करें जो उस फेयर में हैं, वो कितना कमा रहे हैं, और उसके हिसाब से अगर आप उतना कमा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कमा रहे तो आप एडिशनल बिलिंग करिए, उसमें टैक्स भरिए. दैट्स द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ डूइंग द ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी. सर, अगर जो एनालिसिस आपने बताया थ्रू दी सॉफ्टवेयर, अगर वो हमारे 8% मार्जिन से, जो हमारा एग्जांपल था, उससे मैच नहीं हुआ, देन हाउ वी आर गोइंग टू, मींस द कंपनी इज गोइंग टू कैलकुलेट इट्स आर्म लेंथ प्राइस सो दैट टैक्सेशन हमारा पे भी हो सके. तो देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया के अंदर 35 परसेंटाइल टू 65 परसेंटाइल यूज़ होता है. सो लेट्स से वो 20 कंपनीज का सबसेट आया, 20 कंपनीज के अंदर 35 परसेंटाइल लाइज एट 8 और 7 नंबर ऑफ द कंपनी, 7th नंबर ऑफ द कंपनी, 8th नंबर ऑफ द कंपनी. ओके, सो दिस कंपनी इज अर्निंग 11% मार्जिन. तो जो 3% का डिफरेंशियल है, दिस कंपनी, इंडियन कंपनी हैज़ अ चॉइस दैट ये वो 3% का एडिशनल बिलिंग करेगी यूएस कंपनी को, और वो पैसा लेकर आएगी. ठीक है, बिकॉज वो आर्म्स लेंथ पे है, वो अपनी इच्छा से नहीं बोल सकती कि मैं 5% ही मार्जिन कर रही हूँ, उसे वो 3% एडिशनल बिलिंग करना पड़ेगा. इफ़ दे आर नॉट रेडी टू डू द 3% एडिशनल बिलिंग, तो उसको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, और बोलना पड़ेगा ये 3% का मैं एडिशनल टैक्स आपको दे देता हूँ. सो एनी हाउ गवर्नमेंट इज कंसर्न दैट यू शुड मीट दैट 11%, or whatever your study report says, you should Okay. be meeting that. सर, आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए कुछ मेथड्स भी दे रखे हैं इनकम टैक्स लॉ में, लाइक कंपैरेटिबल यूनिट प्राइस मेथड, TNMM मेथड. सो ये भी कहीं ना कहीं, जो मेरा परसेप्शन है अभी तक, कि कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है. अगर आप कर रहे हैं तो वापस से इसमें ह्यूमन जजमेंट आ रहा है. इज इट करेक्ट टू से? कुछ हद तक yes, human judgments are involved in every sphere of life, including taxation. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड इज द फर्स्ट मेथड, दैट्स द मोस्ट रिलायबल मेथड. कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस कैसे है? जैसे मैंने आपके सॉफ्टवेयर वाले एग्जांपल में बोला कि एक इंडियन कंपनी $30 पर आवर के अंदर अपनी अनरिलेटेड पार्टी को बेच रही है. अगर वही चीज़ वो $30 पर आवर के अंदर दूसरी अनरिलेटेड पार्टी, अपनी रिलेटेड पार्टी को भी बेचती है, इससे ज़्यादा बेस्ट कंपैरिजन तो कुछ नहीं हो सकता ना. ठीक है, आप प्रॉफिट कमाओ नहीं कमाओ, आप लॉसेज में हो, आप अब नॉर्मल प्रॉफिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग टू एवरीवन, यू आर एक्चुअली एट राइट प्राइस. सो ये जो है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस, दैट्स द मोस्ट रिलायबल मेथड. बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला जो चीज़ है जनरली नॉर्मली प्रैक्टिकली सिनारियोज में बहुत कम जगह मिलता है कि हम वही सेम चीज़ रिलेटेड पार्टी को बेच रहे हैं, वही सेम चीज़ अनरिलेटेड पार्टी को बेच रहे हैं. उसके बाद जो हमारे मेथड आते हैं, रीसेल प्राइस, कॉस्ट प्लस, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड. ठीक है, 80% ऑफ द केसेस विल फॉल इनटू ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड. हम बोलते हैं हमारा मार्जिन इतना, हमारे कंपेरेबल का मार्जिन भी इतना, एंड देयरफॉर इट इज आर्म्स लेंथ. इसके लिए हम इसको हमारी भाषा में जनरली बोलते हैं तेरा ना मेरा मेथड. ठीक है, सो कुछ नहीं है, वो लगा दो प्रॉफिट सही, क्योंकि एट द एंड उसी प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है, एंड गवर्नमेंट इज मोस्ट कंसर्न अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी. सो देयर आर कंडीशंस गिवन. अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो रीसेल प्राइस मेथड बैठ सकता है. अगर आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीदते हैं और इंडिया में बेच रहे हैं तो रीसेल प्राइस. अगर आप इंडिया से खरीद के आगे बेच रहे हैं तो CPM मेथड लग सकता है. अगर दोनों ही कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही हैं कि दोनों ही बहुत सारे काम कर रही हैं, दोनों ही फंक्शंस खूब सारे कर रही हैं, दोनों ही वहाँ भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, यहाँ भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इधर भी मार्केटर है, उधर भी मार्केटर है, तो एक प्रॉफिट स्प्लिट मेथड होता है. ओके. इट इज़ लाइक अकिन टू पार्टनरशिप. मैं और आप पार्टनरशिप में आए, हमने कुछ काम चालू करा, हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम बोलेंगे नंदिनी विल डू मार्केटिंग, सो चलो 30% प्रॉफिट तुम्हारा, नमन विल डू एग्जीक्यूशन, 20% प्रॉफिट मेरा, नन्नी विल बी द HR ऑल्सो, 10% उसका. ऐसे प्रॉफिट स्प्लिट मेथड. ये 4 मेथड के बाद जो एंड में मेथड बच जाता है वो तेरा ना मेरा मेथड, और 80% ऑफ द केसेस में वही मेथड यूज होता है. सो देयर इज अ सब्जेक्टिविटी, बट देयर इज अ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, और रादर सिचुएशंस दे रखी है इंडियन रूल्स में भी, OECD रूल्स में भी, कि इन सिचुएशन में ये फॉलो होना चाहिए. सो जैसे आपने बोला ह्यूमन जजमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो आज आपका जजमेंट, सपोज अगर
डिफरेंट मेथड का है, रीसेल प्राइस मेथड का है, एंड द टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर बोलता है कि नहीं, यहाँ पे तो कॉस्ट प्लस मेथड लिखेगा, बराबर। एंड देयर आर चांसेस कि उसके बाद आपके पास स्क्रूटनी नोटिस भी आ जाए. Absolutely. So what really changes in transfer pricing when a scrutiny notice arrives? Absolutely, it's a different ball game altogether when a scrutiny notice arrives. Very frankly, when we work on a TP study, हम लोगों के लिए कंप्लाइंस है एक, तो हम देखते हैं कि रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए और हमें पता है कि अगर ये हमारा 8% है तो 8% हमको हमारा जस्टिफाइड हो जाए, 10% जस्टिफाई हो जाए. When a scrutiny notice arrives, there is someone who is scrutinizing your TP study with a lens that ये गलत है, इन लोगों ने प्रॉफिट छुपाया है, इनका तो 8 नहीं, इनका 15 होना चाहिए, 20 होना चाहिए. एंड वी हैव सीन सच केसेस वेयर even a simple software development services, TPO alleged that you should have 24% margin, which is very, very difficult to achieve. तो जो भी हमने टीपी स्टडी बनाई है उसकी एक्चुअल टेस्ट अगर मैं बोलूँ, जो उसका सही जजमेंट तभी होता है तब वो स्क्रूटनी का टेस्ट पास करता है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तब हम ज़्यादा साइड स्क्रूटनाइज भी करते हैं, ज़्यादा डेप्थ में भी जाते हैं कि कंपनी सेलेक्ट करी तो क्यों करी, कंपनी छोड़ी अगर हमसे कंपेरेबल नहीं थी तो क्यों नहीं थी. यू गो इनटू देयर वेबसाइट्स, you go into their audit reports, you go into their investor presentation, you go into their director's statement, and you understand whether this company is really comparable to me or not, because at the end the fight is about comparability. TPO ऐसी कंपनीज लेके आएगा जो कि बहुत हाई मार्जिन है लेकिन आपसे कंपेरेबल नहीं है, और आपने ऑलरेडी अपनी कंपनी कंपेरेबल पे ला रखी है, तो आप TPO की कंपनी जाके देखोगे कि उनके एनुअल रिपोर्ट्स निकालोगे, आप बताओगे कि अरे ये सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रही है, इसका तो खुद का एक सॉफ्टवेयर है, ये तो इंटेंजिबल भी है इसके पास. सो थिंग्स चेंज ड्रामेटिकली व्हेन अ स्क्रूटनी नोटिस अराइव. यू गो इनटू 10x डेप्थ टू सेव योर क्लाइंट एंड सेव योरसेल्फ. सर, अपन स्क्रूटनी नोटिस की बात कर रहे थे, एक हो गया कि मेथड के बेस पे आई, एक है कि टीपी लगता ही जब है जब आपका ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ हो रहा है, एंड देयर आर डिफरेंट बेंचमार्क्स जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज है या नहीं है. अगर उसके रिस्पेक्ट में स्क्रूटनी नोटिस आता है, हाउ विल वी डील विद दैट? सो देखिए, जनरली हमने ये देखा है कि दो तरह के क्लाइंट होते हैं. एक तो वो है जिसने अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइज सही से डिफाइन कर रखी है, हु हैज़ डन अ बैकग्राउंड वर्क एंड उसकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज सही तरीके से डिफाइन है. देयर आर सम assessees who are not aware about these provisions. So either they have not even filed a TP study report, not even filed form 3CEB जो कि mandatory है फाइल करना. Even if you have a single rupee transaction with your associate enterprise, वो mandatory है. People have not filed that. उसी में एक ब्रांच आती है, people have filed that but not mentioned करेक्ट एसोसिएट एंटरप्राइज. तो उनकी 6 एसोसिएट एंटरप्राइजेस उन्होंने 4 ही बताई, 2 उन्होंने बताई नहीं है. ये जो लास्ट वाला केस मैंने आपको बताया जिसमें एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं बताई, ऐसा बहुत रेयर होता है. समवन हु इज शोइंग दिस अप विल मोर और लेस शो ऑल द एसोसिएट एंटरप्राइज, बट दीज केसेस डू हैपन. पीपल डू नॉट have not filed their form 3CEB, have not shown transactions with them. इन सिचुएशंस को हम लोग ऐसे टैकल करते हैं या एडवाइस जनरली देते हैं कि कोई बात नहीं, अब फाइल कर लो, एटलीस्ट यू कम आउट क्लियर एंड आस्क फॉर पार्डन. की ठीक है, उस समय नहीं करा. वी हैव हैंडल्ड केसेस वेयर वी हैव फाइल्ड लास्ट 5 years 7 years फॉर्म 3CEB कि चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब फाइल कर लो. स्क्रूटनी नहीं खोली है, उससे पहले भी फाइल कर लो, बिकॉज लेट्स से कभी कोई ड्यू डिलिजेंस होता है, कभी कोई आगे वो लोग IPO की प्लानिंग करते हैं, एंड दोज सच काइंड ऑफ कंपनीज ऑल्सो सम हैव नॉट फाइल्ड देयर फॉर्म 3CEB. सो उनको एडवाइस ये होती है कि अगर आपने एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं शो करा, अपनी चीज़ फाइल नहीं करी है, तो जब जागो जब सवेरा, आप अब फाइल कर लो. ओके सर, हमें अपनी आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन करनी है. सो उसमें जनरली कंपनीज़ की यार हम हर साल इसे डिटरमाइन करें, बेटर है हम एक बार ही डिटरमाइन कर लें, एंड फॉर अ सर्टेन पीरियड उसी वे में हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे. वी कैन कॉमनली कॉल एज एडवांस रूलिंग ऑल्सो. सो हाउ डू वी लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस? क्या होता है इसके अंदर, देखिए, हर साल इकोनॉमिक सिचुएशंस चेंज होती है, हर साल प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होती है. आज मान लीजिए मैं 4 महीने पहले अगर कोई दुबई में माल बेचता, ठीक है, और आज जो मैं बेच रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है. आई विल हैव अ हायर क्रेडिट रिस्क. ठीक है, मुझे पता नहीं वो पैसा भी आएगा कि नहीं आएगा, वो कंट्री किस तरह से चल रही है. मैं अगर इराक में काम कर रहा हूँ या मैं इजराइल में काम कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली.
सो वी कैन नॉट से दैट मैंने एक बार तय कर लिया और मेरा ये काम हो गया, ठीक है. इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस चेंज, सिचुएशंस चेंज, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, योर प्राइसिंग चेंज, स्केर्सिटी चेंजेस, योर प्राइसिंग विल ऑल्सो change. However, there is a mechanism where the multinational wants to avoid disputes. They can go to the income tax department and ask for an advance pricing agreement. वो बता सकते हैं हमारे फैक्ट्स ये हैं, अमूमन ये वाली चीज़ें रहती हैं. अगर ये फैक्ट्स और ये सिचुएशन सेम रही तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और द असेसी शेक हैंड्स एंड डिसाइड ऑन अ परसेंटेज. लेट से आपकी वो जो आईटी कंपनी है, ठीक है, और वो जा रही है और 8% है, एंड द assessee wants to maintain 8%. हर साल आपके स्क्रूटनी के नोटिस आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, डिपार्टमेंट इज डूइंग ऑन 24%, यू आर पेइंग हैवी पेनल्टीज, इंटरेस्ट, फिर डीआरपी जाएंगे, डीआरपी के बाद ट्रिब्यूनल जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे. योर assessee is fed up doing that. You can suggest to that assessee, let's go to the income tax department, let's explain why our percentages are not that high and it should be 8%. You will sit across table with them, they will come to your facility, they will understand your business and they will sign a document with you कि ठीक है, आपकी इसी circumstances में, इन्हीं चीज़ों में, let's we grant you a 10%. You are also at peace, they are also at peace. So एक ये advance pricing agreement हम लोग कर सकते हैं. Second, to get certainty, there is our rules called safe harbor rule. हर कोई जना advance pricing agreement afford नहीं कर सकता. It's a सब्जेक्टिव थिंग बिकॉज वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी बहुत टाइम इन्वॉल्व है, कंसल्टेंट का भी बहुत टाइम इन्वॉल्व है. इट्स अ कॉस्टली अफेयर. सेफ हार्बर क्या कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ बता दिए सेफ हार्बर कि जैसे मान लीजिए आप ITES सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, 15.5% आप अगर ऐड कर देंगे तो चलेगा, हमें कोई इशू नहीं है. इफ़ यू डू अ 15.5%, अ कंपनी अप टू अ लिमिट ऑफ 2000 करोड़ ऑफ टर्नओवर कैन अप्लाई दैट, ठीक है. एंड अगर वो क्राइटेरिया मीट करती है, एक छोटी सी स्क्रूटनी होगी एंड दे विल गिव यू अ सेफ हार्बर सर्टिफिकेट विच इज ऑल्सो नाउ विद द बजट विल बी एप्लीकेबल फॉर 5 years. सो फॉर स्मॉलर एसएससी सेफ हार्बर, बट उसकी परसेंटेज थोड़ी सी हाई होती है सेफ हार्बर की. ओके, what for a larger SSC they can go into an advice pricing agreement. These are just a way to achieve tax certainty. सर ये जो टैक्स सर्टेनिटी है, क्या हम ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी ले सकते हैं फॉर द Yes. प्रीवियस ईयर्स आल्सो, बोथ इन रिस्पेक्ट ऑफ सेफ हार्बर एंड एडवांस प्राइसिंग For अग्रीमेंट? safe harbor, it is not applicable. For advanced pricing agreement, there is a rollback period because advanced pricing agreement करने में जब आप स्टार्ट करोगे, कभी 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल भी लग जाते हैं. Okay. कि वो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट चल रहा है, उनकी फैक्ट्री विजिट्स हो रही है, साइट विजिट्स हो रही हैं, दे आर हैविंग डिस्कशंस एंड इट टेक्स अ गुड लेंथ पीरियड ऑफ टाइम. तो यस, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट में रोल बैक अरेंजमेंट्स होते हैं. सर आपसे अभी तक बात करके समझ में आया कि मेजरली टीपी में हमें क्या देखना है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज है या नहीं है, मेथड के अकॉर्डिंग हमें आर्म लेंथ प्राइस डिसाइड करनी है, या फिर अगर हमें एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट करना है. सो सर आप यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड डूइंग वर्किंग इन टीपी फ्रॉम लास्ट ओवर अ डिकेड आई गेस. सो आप आज वो वर्क कर रहे हैं लाइक एडवाइजिंग, कंसल्टिंग, बट अगर मैं मेरे जैसे इंडिविजुअल्स जो फ्रेशली क्वालिफाइड हैं या सीए स्टूडेंट्स, उनके पास अभी टीपी में क्या वर्क आता है, दैट दे आर जस्ट हैविंग अ मेथड एंड दे आर कैलकुलेटिंग द आर्म लेंथ प्राइस और जस्ट फाइंडिंग आउट थ्रू द प्रोविजन दैट वेदर इट इज़ एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज और नॉट. So the freshers or the CA students feel that transfer pricing is somewhat repetitive. So I want to understand from you, is this conception correct or is it a myth? I would partly say yes, this conception could be correct. Okay, because at a junior level you do have to do a lot much manual grinding, finding comparable companies, finding their business description through websites, though now softwares are coming which will help you in doing it. But I think that's a part of every learning process that you need to do some manual grinding in the start. जब हमने भी स्टार्ट किया था वो सारी बेसिक चीज़ें करी थी. विदाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट रीच टू अ लेवल वेयर यू कैन डू एडवाइजरी, बिकॉज वो बेसिक फंडामेंटल्स हमेशा वही रहते हैं. आई एम अ फर्म बिलीवर इन फर्स्ट प्रिंसिपल्स. फर्स्ट प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होते. वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स अगर आप मैनुअल ग्राइंडिंग करेंगे तो ही समझ में आएगा. हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 2-3 साल मैनुअल ग्राइंडिंग करनी पड़े, आपको वो उससे थोड़ी बोरियत भी होए कि यार ये मैं सेम टाइप का वर्क, रिपीटेटिव टास्क अगेन एंड अगेन कर रहा हूँ. बट आई थिंक इट इज़ लाइक अ फाउंडेशन टू अ बिल्डिंग.
It may not show up when the building is there, but it is very much required. Notion that transfer pricing in the start, it's very repetitive, sometimes boring, could be there. At the same time, it's necessary. And second, I love transfer pricing because that's very business oriented. Someone who wants to enter into transfer pricing, even at a junior level, I will advise them कि आप उसको बिजनेस की तरह देखो कि कैसे हम अलग बिजनेस होते हैं, क्या कंपेरेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं. Somebody needs to understand business before understanding transfer pricing, and वो junior level पे भी होता है, वो senior most level पे भी होता है. That's the fundamental part of transfer pricing. सर प्रोसीडिंग विद दैट ओनली, अगर कोई इंडिविजुअल ट्रांसफर प्राइसिंग को एज अ करियर देखना चाहता है, what are the key pointers or key things that he or she should focus upon? So I will carry the answer which I was concluding in the previous question. Understanding business is of utmost importance. When you do, let's say, something like a tax, when you do something like an audit, you may restrict, it's not ideal, but you may restrict yourself to CFO's cabin. When you are doing transfer pricing, your limitation is not CFO's cabin. You need to understand how marketing works. You need to understand how sales works. You need to understand how customer acquisition works, how software development, how software on a mobile is different from a software on a website, how software developing using a code or using an AI is different from a IT support. You need to go into those granularity. So therefore मैं ये बोलूँगा किसी भी जूनियर को, कोई अगर ट्रांसफर प्राइसिंग समझना चाहता है, भाई बिजनेस समझो पहले. कोई भी नया आपके पास क्लाइंट आता है, कोई एसएससी आता है, अगर आप उसकी बिजनेस में नहीं घुसते, आप बोलते हो हाँ ये तो ये माल बेच रहा है, ये से, अरे वो माल बेचने में क्या डिफरेंस है, वो क्या वो, जैसे आई विल आस्क यू समथिंग वेरी बेसिक. ऑल ऑफ अस बाय परफ्यूम्स, ओके. वुड द प्राइस ऑफ अ इंडस्ट्रियल परफ्यूम, मान लीजिए हम खाने पीने में जो यूज़ करते हैं, हमारे कोई भी केक में डलता है, कोई वहाँ भी परफ्यूम्स डलते हैं, ठीक है, एंड अ प्राइस ऑफ अ डिओड्रेंट और अ परफ्यूम वी यूज, विल इट बी सेम? नो, डिफरेंट. दोनों तो परफ्यूम है, दोनों इत्र हैं, दोनों सब हैं, यूसेज अलग है, एक इंडस्ट्रियल स्केल पे है. अगर आपने बिजनेस नहीं समझा, आपने बोला ठीक है परफ्यूम मैन्युफैक्चरर टू परफ्यूम मैन्युफैक्चरर मैं एक प्राइस कंपेयर कर रहा हूँ, आप बोलोगे अरे मैं तो इंडस्ट्रियल हूँ, ठीक है, और उस इंडस्ट्रियल वाले को उतना कमाना चाहिए जितना कि एक कोई फेमस परफ्यूम वाला कमा रहा है. वो रिटेल स्टोर में बेच रहा है, वो ग्लैमराइज करके उसको कमा रहा है. वो एक बॉटल को अगर वो 10,000 में बेचता है, आप वही 1 लीटर या हो सकता है 1 गैलन को आप 10,000 में बेचो. देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस. ऑब्वियसली यू नीड टू लर्न योर लॉज, you need to learn your case laws, you need to understand, but in one line, understand business is of paramount importance in transfer pricing. So now it's time for the rapid fire. Again, I'm going to give you some lines. You'll be having 2 minutes to speak the first thought that came to your mind. Perfect. So the first line is, automation can replace transfer pricing professionals. It will not replace, it will replace those transfer pricing professionals who are not using automation. Okay. So जैसे मैंने आपको बोला, हम कंपेरेबल कंपनीज ढूंढते हैं. कंपेरेबल कंपनीज ढूंढने से आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले हमारा क्या था, मैंने आपको एक 50 कंपेरेबल कंपनीज की लिस्ट दे दी. आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, उनका बिजनेस डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे, एक फॉर्मेट में डालेंगे, उस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे कि ये सही है कि नहीं है. नाउ विद द हेल्प ऑफ AI, लेट्स से वेरियस परप्लेक्सिटी और आवर इंटरनल सॉफ्टवेयर, वी कैन ग्रैब इट ऑनलाइन by just have a click. So calm easy. Now I just need to analyze whether this is comparable or not. Even our internal software does that now. कि वो comparable है कि नहीं है, but वो human intervention वहाँ आएगा. When I am taking the financials of some company and I am seeing whether that is comparable, when I am taking the director reports of those company, मेरे को पहले एक एक चीज़ मैनुअली पढ़नी पड़ती थी, अब मुझे वो मैनुअली नहीं करनी पड़ती. So yes, usage of AI is very important. It's not gonna replace humans at any point of time, but we need to use it wisely. So second point, if you leave transfer pricing in 2 years, you leave before it becomes powerful. Absolutely. In 2 years you are just building that foundation, और उसके बाद आप वो बिल्डिंग खाली छोड़ के जा रहे हो, खाली नींव डाल दी, ऊपर बिल्डिंग ही नहीं बना रहे, तो वो आपकी ग्राइंडिंग ईयर्स है, लर्निंग ईयर्स है, आगे तभी काम आएगा. तब उस पर एक अच्छा सा बिल्डिंग बनाओ और 10-15 माले चढ़ाओ, तब जाके वो चीज़ इंटरेस्टिंग बनेगी. तब आप एक एडवाइजरी स्टेज पे पहुंचोगे, तब आप प्रीएम्प्ट करोगे कि क्या इश्यूज आने वाले हैं, रादर देन जस्ट फॉलोइंग द क्लाइंट्स इंस्ट्रक्शंस. सो
एब्सोल्युटली किसी भी जगह 2 साल इज नॉट इनफ एंड मोर सो इन ट्रांसफर प्राइसिंग आई वुड से. So, sir, the last line is transfer pricing doesn't test memory, it tests reasoning. एब्सोल्युटली. सो दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग. उसमें कुछ याद रखने का आपको ज़रूरी नहीं है. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रख लो, बट इट्स वेरी लॉजिकल. सिंपल थिंग लाइक द परफ्यूम थिंग आई आस्क्ड, यू नो, सिंपल. लेट्स से वी से एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए. लॉजिकल है. ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ वेरी लॉजिकल. अगर किसी के पास भी शार्प रीजनिंग है, शार्प माइंड है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ईजीली पकड़ सकता है. अगर हम फ्रूट्स की बात करें, जैसे मैंने बोला एप्पल टू एप्पल, Alfonso mango and a Langda mango will have a different rate, and you will say अच्छा he is a mango trader, he is a mango trader. भाई सेम रेट लगा लो, बिजनेस तो वही है. ऐसा नहीं है. सो ट्रांसफर प्राइसिंग में का एक ही सेक्शन है, ठीक है, आप उसी को पढ़ते हैं, तो ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी लॉजिकल. इट इज़ वेरी close as anything can get into business with respect to tax laws, and that's one thing I love about transfer pricing. सर, आपसे बात करके काफ़ी सारे जो एक मिसकंसेप्शंस थे और मिथ्स थे वो मेरे भी क्लियर हुए हैं. एंड आई एम वेरी श्योर कि जो स्टूडेंट्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, एंड इवन द बिजनेसेस हु आर डीलिंग ग्लोबली, उनके भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हुए होंगे. ये हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमने रखा था. नेक्स्ट टाइम आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि हम थोड़ा सा इन डेप्थ और जाएं ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर. Absolutely. This time, thank you so much, sir, for giving your precious time to us. Thank you so much for being here. Thank you, Nandini. It's always a pleasure to have an interaction with you, and I'm looking forward for our next episodes. Thank you so much, sir. Thank you. Cross-border work is not about foreign clients. It's about foreign thinking. Because in today's world, profits don't just get earned, they get positioned. Moving across borders quietly, strategically, intentionally, and most people never even see it. But professionals who understand how profits are allocated, how value is distributed, and how decisions shape taxation, they don't just follow the system, they influence it, they lead. And even after pricing is understood, one question still remains. If money is moving across borders, is it even allowed to move that way? Under what rules, limits, and permissions? Because that's where the next layer begins. Regulating that movement. And that's exactly what we will decode in the next episode. What it's going to be, let me know in the comment section. This is Tax Table with CA Nandini, and I'll see you in the next one.